Assalamu alaikum students, this is Muhammad Alam, lecturer of botany, SMB Qaid Azam Higher Secondary School, Darstan Channo. Today I deliver lecture about the movement of plants. We discuss only about the movement, how living organisms or plant movement one place to another place, और हमने जो डिफाइन किए थे सिर्फ डेफिनेशन की थी, ऑटोनॉमिक मूवमेंट और पैराटोनिक मूवमेंट की डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट क्लियर किया था. नाउ फर्दर इन पार्ट 2 I explain the type of autonomic movement. Autonomic movement take place due to external stimuli. This movement mostly present in plants, naturally occurring in DNA. Type of autonomic movement is number 1, tactic movement. What is tactic movement? Internal cell or organisms move to response to stimuli. इसमें जो प्लांट की बॉडी होती है, एक्सटर्नल बॉडी और इंटरनल ऑर्गन्स और सेल और ऑर्गेनिजम्स, उसके अंदर स्टिमुलाई के थ्रू सेल एक जगह से दूसरी जगह तक मूवमेंट करे तो उसको हम क्या कहते हैं, टैक्टिक मूवमेंट. 2 टाइप ऑफ मूवमेंट टैक्टिक मूवमेंट. नंबर 1 पॉजिटिव टैक्टिक मूवमेंट और नेगेटिव टैक्टिक मूवमेंट. पॉजिटिव टैक्टिक मूवमेंट मीन्स toward the stimuli, or negative tactic movement means away from the stimuli. For example, phototactic movement, chemotactic movement. Phototactic movement means movement take place due to the light. Movement take place due to the light. For example, this is a leaf, this is a chloroplast. Chloroplast help in the photosynthesis and formation of food. When during the photosynthesis sunlight come from this direction, light reach on the surface of the leaves, then this chloroplast move toward the light. It means this chloroplast move toward the light. It means the chloroplast move one place to another place. This is a phototactic movement. अगर लाइट यहाँ आती है तो this chloroplast move toward the light. It means tactic movement means the movement in plants. Due to this movement, cells or organ or plant move from one body to other body or one place to another place is called tactic movement. So this is a phototactic movement, and other is a chemotactic movement. Means movement take place through the chemical process. Through the chemical means
movement take place through the chemical. For example, plant has two parts, reproductive parts. Number one, sperm and ovum. Sperm and ovum is the part of flower. Flower is the reproductive part of plants. During the reproduction, during the pollination, sperm and ovum आपस में कैसे कंबाइन होते हैं, कैसे फर्टिलाइज होते हैं। तो ओव्यूम क्या है? दिस इज अ सेल। स्पर्म, दिस इज अ सेल। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ये स्पर्म डायरेक्टली ओव्यूम के तरफ नहीं जाता। स्पर्म डायरेक्टली ओव्यूम के तरफ नहीं जाता, नहीं पहुंच पाता। इस वजह से ओव्यूम के अंदर एक केमिकल होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। जिसे क्या कहते हैं हम? न्यूक्लिक एसिड। ये ओव्यूम सीक्रेट करता है, ये ओव्यूम सीक्रेट करता है और इसके थ्रू ये स्पर्म ट्रेवल करते हैं ओव्यूम के तरफ थ्रू केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, और स्पर्म जाके ओव्यूम से कंबाइन होते हैं और फर्टिलाइजेशन होती है। तो इसको हम कहते हैं कीमोटैक्टिक मूवमेंट। मूवमेंट, कीमोटैक्टिक मूवमेंट मीन्स मूवमेंट टेक प्लेस by the chemicals is called chemotactic movement. And other type of autonomic movement is a turgor movement. What is a turgor movement? Movement take place due to loss or gain of water. Movement take place due to loss or gain of water is called turgor movement. For example, sleep movement, touch me not. Sleep movement, touch me not. Sleep movement is a type of turgor movement. During this movement, when any external part of any body when touch the leaves of touch me not, when touch the leaf of touch me not, then due to that touching when due to the touching of leaves, then pressure exert through the leaf and water loose from the leaves. Water loose from the leaves and then the leaves are closing. Leaf are closing. This is called sleep movement. This movement is called turgor movement because during touching the water of leaves outside the leaf and then leaf is closed. टच मी नॉट के जो प्लांट्स के जो लीव्स है, अगर उसको किसी भी चीज़ से टच करेंगे, उस लीव्स के ऊपर प्रेशर देंगे कि उनमें जो पानी, जो वाटर जमा होगा वो बाहर निकल जाएगा, वो लॉस हो जाएगा। इस वजह से ये लीव्स क्या होंगे,
लूज हो जाएंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्लीप मूवमेंट। एंड अदर एग्जांपल इज एंड लीव्स, दिस इज अ स्टेम, दिस इज अ स्टेम, दिस इज अ लीफ, between the stem and leaf presents petiole. In petiole presents a portion is called pilvinous. Pilvinous जब स्टीम से इस पिल्विनियस के अंदर दो सेल्स होते हैं, इसके अंदर पानी भरा हुआ होता है। जब इसके निचले साइड के हिस्से पे प्रेशर बढ़ेगा तो पानी क्या होगा, लॉस हो जाएगा, बाहर एक्सक्रिएट हो जाएगा। और जो इरेक्ट है, इरेक्ट लीव्स है, फिर क्या होगा, लूज हो जाएगा। ये वाला हिस्सा क्या, लूज हो गया। ठीक है, तो इस को हम कहते हैं टर्गर मूवमेंट। टर्गर मूवमेंट टेक प्लेस ड्यू टू द एक्सटर्नल प्रेशर और ड्यू टू द लॉस और गेन ऑफ द वाटर। फिर इसके अंदर जब पानी आएगा तो ये लीफ अपनी एक्चुअल हालत में आ जाएगा, एक्चुअल हालत में आ जाएगा। इसको हम कहते हैं टर्गर मूवमेंट। आई अगेन रिपीट, टर्गर मूवमेंट, मूवमेंट ड्यू टू लॉस और गेन ऑफ वाटर इज कॉल्ड टर्गर मूवमेंट। स्लीप मूवमेंट इज अ टाइप ऑफ टर्गर मूवमेंट। टच मी नॉट एक प्लांट है, बहुत सेंसिटिव होता है, इसके अंदर लीफ के अंदर पानी भरा हुआ होता है। जब भी हम इसे टच करते हैं, टच होने की वजह से इसके अंदर, लीफ के अंदर जो पानी होता है वो लॉस हो जाता है, बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से ये श्रिंकेज हो जाता है, यानी कि इसके जो लीव्स है वो क्लोज हो जाते हैं। फिर 10 मिनट या 15 मिनट के बाद फिर से इसके अंदर पानी दोबारा आ जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, टर्गर मूवमेंट। ग्रोथ मूवमेंट, ग्रोथ मूवमेंट इज द टाइप ऑफ ऑटोनॉमिक मूवमेंट। दीज आर ड्यू टू द डिफरेंशियल ग्रोथ। इस मूवमेंट में मुख्तलिफ डायरेक्शन के हिसाब से ग्रोथ होती है। फॉर एग्जाम्पल क्लोजिंग ऑफ बड, ओपनिंग ऑफ बड, growth of upper part of plant, growth of lower part of plants. This is a growth movement. There are two type of growth movement. Number one, epinesty, hyponesty. Epinesty is the movement. In this movement, it takes place in the presence of axon at upper surface or opening of the bud. एपिनेस्टी में क्या होता है, जो प्लांट की ग्रोथ होती हैं वो अपर पोर्शन, अपर पार्ट वाले हिस्सों में जो भी उसके टिश्यूज़ होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं या पार्ट्स होते हैं, उसमें ये ग्रोथ होती है। उस यानी कि ग्रोथ टेक प्लेस अपर पार्ट ऑफ प्लांट्स। फॉर एग्जांपल इसके अंदर एक हार्मोन्स होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोन हार्मोन्स। Axon hormone basically present in the tip portion of the leaves, tip portion of the branches. These hormones help the upper part of the plants. एपिनेस्टी में क्या होता है, ये ख़ास तौर पर जो प्लांट के ऊपर वाले हिस्सों में होते हैं ग्रोथ करने में हेल्प करता है, ग्रोथ करने में हेल्प करता है, वो है एक्सोन हार्मोन्स। इसकी वजह से जो भी
प्लांट के ऊपर वाले हिस्से है, ऊपर वाले पार्ट्स है, वो मूवमेंट करेंगे या ग्रोथ करेंगे अपर साइड की तरफ, उसको हम क्या कहते हैं, एपिनेस्टी। हाइपोनेस्टी, एपिनेस्टी में फॉर एग्जांपल बड है, ये बड क्या है, बिल्कुल भी क्लोज है, और जब ये ग्रोथ करती है या ओपन होती है तो ये इस तरीके से अपर पोर्शन के तरफ से ये क्या होती है, ओपन होती है, ग्रोथ भी करती है और ओपन भी होती है, उसको हम कहते हैं ओपनिंग ऑफ बड। ओपनिंग ऑफ बड इज द टाइप ऑफ एपिनेस्टी मूवमेंट। हाइपोनेस्टी मूवमेंट, इट टेक प्लेस इन द जेब्रिलाइन एट लोअर सरफेस और क्लोजिंग बड। इसमें एक और हार्मोन्स होता है ड्यूरिंग ग्रोथ के टाइम में, जो प्लांट के लोअर पोर्शन में मूवमेंट होती है, उसमें इस हार्मोन्स का बहुत इन्वॉल्वमेंट होता है। इसकी वजह से वो क्या होता है कि प्लांट के जो हिस्से होते हैं वो ग्रोथ करते हैं, लेकिन निचले हिस्सों वाली तरफ से, या उसमें जो बड होती है, फ्लावर के अंदर जो बड होती है, या जो एक लीफ का हिस्सा होता है, एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है, वो क्या होती है, या क्लोज हो जाती है, ठीक है, बंद हो जाती है, या वो जो हेल्प करते हैं निचले टाइप वाले हिस्सों की तरफ हेल्प करती है। दिस इज टाइप ऑफ hyponesty. Now student, we start the second type of movement in plant, paratonic movement. Paratonic movement is the type of movement take place due to external stimuli. ये जो मूवमेंट होती है प्लांट के अंदर वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई की मदद से होती है, यानी जो बाहर से जो भी स्टिमुलाई होते हैं प्लांट से अटैच होते हैं, उनकी वजह से जो प्लांट के अंदर और बाहर जो मूवमेंट होती है उनको क्या कहते हैं, पेराटोनिक मूवमेंट। देयर आर टाइप्स ऑफ पेराटोनिक मूवमेंट। नंबर वन, ट्रॉपिक मूवमेंट। नंबर वन, ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट ऑफ होल प्लांट्स आर ऑर्गन अवे और टुवर्ड द स्टिमुलाई। जो प्लांट की मूवमेंट है, प्लांट की सारे बॉडी की मूवमेंट है, वो मूवमेंट जहाँ तो स्टिमुलाई की टुवर्ड द स्टिमुलाई मूवमेंट करेंगे या फॉरवर्ड द स्टिमुलाई मूवमेंट करें, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट से किसी भी चीज़ की तरफ वो मूवमेंट करेंगी या उनसे वो नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू पे वो मूवमेंट करेगी, ठीक है। तो ट्रॉपिक मूवमेंट ऑफ होल प्लांट्स और ऑर्गन अवे और टुवर्ड द स्टिमुलाई। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट। नंबर वन, फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म का मतलब है कि मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू द लाइट, यानी प्लांट के अंदर वो मूवमेंट, प्लांट में वो मूवमेंट होती है जो लाइट के थ्रू मूवमेंट हो, यानी इसमें जो स्टिमुलाई हो वो लाइट के तहत प्लांट के अंदर मूवमेंट हो तो उसको क्या कहते हैं, फोटोट्रॉपिज्म। फॉर एग्जांपल, ये गुंबला है, इसके अंदर एक प्लांट है, इसके अंदर एक प्लांट है, ठीक है। जब सनलाइट इसके ऊपर आती है और इसको कवर कर रहे हैं एक बॉक्स से, और यहाँ से एक जगह है जहाँ से लाइट क्रॉस कर रही है अंदर इस बॉक्स से, तो जब ये लाइट इस प्लांट के ऊपर आएगी तो ये प्लांट अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा, ये प्लांट अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा टुवर्ड द स्टिमुलाई। तो हम इसको क्या कहते हैं, फोटोट्रॉपिज्म मूवमेंट,
ठीक है। फोटोट्रॉपिज्म मूवमेंट मीन्स मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू द लाइट, या अदर वर्ड मूवमेंट रेस्पॉन्स ड्यू टू द लाइट। वो मूवमेंट जो लाइट के रिस्पांस के थ्रू अपना डायरेक्शन चेंज करे तो उनको हम क्या कहते हैं, फोटोट्रॉपिज्म। पहले ये सीधा सा प्लांट, ठीक है, जब इसके ऊपर लाइट आई, लाइट की शुआ आए तो ये इसने अपना क्या क्या डायरेक्शन चेंज कर दिया टुवर्ड द स्टिमुलाई, टुवर्ड लाइट, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। इसके बाद है जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म मीन्स मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू द ग्रेविटी, मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू द ग्रेविटी। फॉर एग्जाम्पल ये अर्थ है, ज़मीन है, यानी ये सॉइल है, ये प्लांट है, रूट्स है, और ये लीव्स स्टीम है, ठीक है। ये क्या सेकंड टाइप क्या है, जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म इज मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू द ग्रेविटी। यहाँ दो टाइप की मूवमेंट हो रही है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, एक नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। तो ये ग्रेविटेशन के उलट में मूवमेंट कर रही है, यानी ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रही है, यानी नेगेटिव मूवमेंट कर रही है, और ये ग्रेविटेशनल नीचे यानी पॉजिटिव मूवमेंट कर रही है। तो यहाँ जो रूट्स की मूवमेंट होगी, ये मूवमेंट ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी के तहत जो मूवमेंट होती है उसको क्या कहते हैं, जियोट्रॉपिज्म, ठीक है। जियोट्रॉपिज्म मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू द ग्रेविटी, यानी मूवमेंट रेस्पॉन्स टेक प्लेस ड्यू टू द ग्रेविटी, इज कॉल्ड जियोट्रॉपिज्म। उसके बाद नंबर 3 है, नंबर 3 कीमोट्रॉपिज्म। मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू द केमिकल्स, मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू द केमिकल्स। फॉर एग्जाम्पल ये फंजाई है, ये फंजा है, ठीक है। इसके बादी को क्या कहते हैं, माइसिलियम, और इसमें एक छोटी छोटी सी बॉडीज होती हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम कहते हैं हाइफिया, उसको क्या कहते हैं हम, हाइफिया। तो जब दो फंजाई आपस में मिलेंगे, यानी उसके बीच में रिप्रोडक्शन होगा, कंजुकेशन होगी, तो ये फॉर एग्जांपल फीमेल है और ये मेल है। तो फीमेल एक केमिकल सीक्रेट करेगी, इस केमिकल सीक्रेट करने की वजह से मेल हाइफिया मूव करेगा टुवर्ड द फीमेल और कंबाइन होकर कॉन्जुगेट होंगे, कॉन्जुगेट होकर फर्टिलाइजेशन करेंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं कीमोट्रॉपिज्म। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कीमोट्रॉपिज्म। कीमोट्रॉपिज्म मीन्स मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू द केमिकल। उसके बाद नंबर 4 है हाइड्रोट्रॉपिज्म।
हाइड्रो से मुराद है कि वाटर, ट्रॉपिज्म से मुराद है मूवमेंट। मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू द वाटर, मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू द वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोट्रॉपिज्म। फॉर एग्जाम्पल, ये एक नदी है, यहाँ से पानी जा रहा है, क्रॉस हो रहा है, और यहाँ से एक प्लांट है, उसकी रूट्स हैं, ठीक है। तो वो रूट्स जो मूवमेंट करेंगी टुवर्ड, उसके जो स्टिमुलाई करेंगे वो पानी की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म। इट मीन्स हाइड्रोट्रॉपिज्म में मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू द वाटर, यानी जो रूट्स हैं वो वाटर की तरफ मूव कर रही हैं, तो इसको क्या कहेंगे हम? हाइड्रोट्रॉपिज्म। लास्ट नंबर है थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मोट्रॉपिज्म मीन्स मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू द कांटेक्ट, यानी दो चीज़ों का मिलना, उसको क्या कहेंगे? यानी कांटेक्ट और टच। कोई भी प्लांट किसी भी ऑब्जेक्ट से टच होगा और उनके थ्रू मूवमेंट करेगा, तो उनको कहेंगे थिग्मोट्रॉपिज्म। मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू द कांटेक्ट और टच। फॉर एग्जाम्पल, ये एक दीवार है, ये एक दीवार है, और यहाँ से एक पौधा है जिसे हम कहते हैं क्रीपिंग, और इस दीवार में से एक रूप लटका हुआ है, ठीक है। वो टच हो रहा है किससे? इस प्लांट से, क्रीपिंग से टच हो रहा है, और जब ये इससे टच होगा, आहिस्ता आहिस्ता ये प्लांट क्या होगा? ऊपर की तरफ मूवमेंट करना शुरू होगा, ऊपर की तरफ मूवमेंट करना शुरू करेगा, और रूट के थ्रू और वाल के थ्रू ऊपर बढ़ता जाएगा। इसको कहते हैं थिग्मोट्रॉपिज्म। इट मीन्स मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू द कांटेक्ट और टच। ये प्लांट किसी भी ऑब्जेक्ट से टच होता है और उनसे चिपक कर और उस ऊपर की तरफ मूवमेंट शुरू करता है। इसको हम क्या करते हैं? थिग्मोट्रॉपिज्म, यानी मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू द कांटेक्ट और टच। स्टूडेंट, दिस इज अ मूवमेंट type of movement, peritonic movement, and peritonic movement divide into two parts. Number one, tropic movement or nastic movement. Today only we explain the autonomic movement, type of autonomic movement, peritonic movement, and type of peritonic movement. और पेराटोनिक मूवमेंट फर्दर डिवाइड है ट्रॉपिक मूवमेंट फर्दर डिवाइड है 5 टाइप ऑफ मूवमेंट, 5 टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट। उसमें फोटोट्रॉपिज्म है, जियोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट लेक्चर यही कंटिन्यू करेंगे। पार्ट नंबर 3 में टाइप ऑफ पेराटोनिक मूवमेंट का एक टाइप स्टार्ट करेंगे। द नेम ऑफ दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज नास्टिक मूवमेंट। अल्लाह हाफिज़।